Gargi Sharma, Assistant Professor from Commerce SFS Department. My today's topic is International Logistics Management. This topic is from Unit 4 for BCom Honors students 6th semester. Come to the next slide, students. First of all, I will explain you the definition of logistics. Actually, logistics is a part of supply chain management. Supply chain management is a part of distribution system. Distribution system includes supply chain management, and logistics is a part of supply chain management. Now, the definition of logistics is, according to Council of Logistics Management, logistics is the process of planning, implementing, controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of confirming the customer requirement. From this definition हमें क्या पता चलता है कि जो लॉजिस्टिक्स है बेटा, logistics is not only the supply, it includes all the things. Planning, a proper planning is required कि किस तरीके से जो goods हैं या services हैं हमें point of origin जहाँ पर वो produce हुई हैं वहाँ से पहुँचानी है to the point of consumption जहाँ पर उन्हें ultimately consume होना है, ठीक है। और वो ऐसे ही नहीं, वो सारा काम जो flow of goods और services है that will be done with the proper planning and proper implementation of those plans. It also includes controlling the flow also. It includes the storage also. Storage means warehouses where the goods are kept before supply. Now come to the next slide. Now, the international logistics management. In the previous slide हमने पढ़ा कि what is logistics, logistics क्या होता है. अब है what is international logistics management. International logistics management is also a supply of goods or services from the point of origin to the point of consumption, right? It includes all those components which logistics include, like planning, supply, storage, information, everything. But it includes one more thing, that is this process involves crossing at least one international border. If logistics include this point, which point? Crossing one international border, then it will become international logistics management, right? Now come to the next slide. There are various problems or challenges related with the international logistics management. What kind of challenges those are? The challenges are, the problems are, first, changing customer needs. Changing customer needs, there is always a fluctuation in the needs of customers. So sometime logistics chain या supply chain जो है आपकी बहुत ज़्यादा lengthy हो जाती है, और in that case ये एक challenge हो जाता है to meet the customer needs, right? So इसके लिए बहुत ज़रूरी है there should be now new logistic solutions must be there to meet the customers needs. कई बार होता है जब हम रॉ मटेरियल स्टेज से फाइनल सेल पर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और वहां पर कहीं ना कहीं वी आर नॉट एबल टू मीट द कस्टमर नीड्स, राइट? नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, ऑन टाइम डिलीवरी. ऑन टाइम डिलीवरी, दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रीवियस पॉइंट. जब सप्लाई चेन लेंदी हो जाती है तो लाइक इन केस ऑफ शिप्स, जब शिप से ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उस केस के अंदर बहुत टाइम लग जाता है
और इन दैट केस ऑन टाइम डिलीवरी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती, और इन दैट केस जो है सेल्स कहीं ना कहीं जो डिजायर्ड सेल्स है वो नहीं हो पाती, राइट। नाउ द नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर. Infrastructure is sometimes not suitable for the supply chain management, for the logistics, right? So in case when there is lack of infrastructure, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है स्टोरेज में, कई बारी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम. If infrastructure system is not good, it means your goods will not be supplied in the condition in which you want, that it should be supplied to the ultimate consumer. Now come to the next slide. Capacity. Sometimes there is overcapacity, and in case of overcapacity means जितना सामान आना चाहिए, सपोज किसी जगह पर किसी शिप में या किसी कंटेनर में सिर्फ 10 आइटम आने चाहिए, और इन प्लेस ऑफ 10 आइटम्स अगर हम वहां पर 50 या 20 आइटम घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट मीन्स वहां पर ओवर कैपेसिटी होगी, और इन दैट केस ऑब्वियसली जो डैमेज इज पॉसिबल फॉर द गुड्स, राइट। और ओवर कैपेसिटी की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन फ्राइट रेट्स ऑल्सो, राइट। और फ्राइट रेट्स इंक्रीज होगी, इट मीन्स इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑल्सो, क्लियर, एंड इंक्रीज कॉस्ट अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑल्सो. सो कैपेसिटी इज ऑल्सो a problem with the global logistics system. Now the second is security. Yes, because यहाँ पर जो गुड्स हैं वो पास ऑन होते रहते हैं, गुड्स आर पास्ड फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू द अदर. यहाँ पर एक चेन चलती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार वेयर हाउसेज में रखा जाता है, कई बार ट्रक्स में रखा जाता है, ठीक है. तो देयर इज नो सिक्योरिटी. यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जहां पर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है. तो इट मीन्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड एंड देन अनदर हैंड, इट मीन्स देयर इज a problem of security with the logistics system. Now the another point is country risk and political risk. Yes, we are studying now international logistics system, और international logistics system में obviously country risk और political risk भी बहुत बड़ी एक problem है. अगर host nation is what, which nation? Host nation वो nation होता है जहां पर exporting nation कुछ export कर रहा होता है, right? Host nation में हम फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया किसी और कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया अगर किसी और कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, इन दैट केस इंडिया इज एक्सपोर्टिंग नेशन एंड दिस अनदर कंट्री इज होस्ट नेशन. तो अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर होस्ट नेशन में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो दोनों ही वजह से सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस होगी और उसकी वजह से ऑब्वियसली लॉजिस्टिक सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस होगी. सेम अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हुआ है, अचानक से गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाली कि इंपोर्ट्स आर नॉट अलाउड, या इंपोर्ट वहां पर जो है कॉस्टली हो गए हैं, टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं, तो उस केस के अंदर भी लॉजिस्टिक सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोगों के लिए क्रिएट होगी फॉर द एक्सपोर्टिंग नेशन एंड फॉर ऑब्वियसली फॉर द होस्ट नेशन ऑल्सो. Come to the next slide. Fluctuations in exchange rate. Yes, in case of international logistics system, this point is to be considered. Why? अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगी तो उसकी वजह से कभी जो है इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, कभी एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, ठीक है. तो इसलिए फ्लक्चुएशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लॉजिस्टिक सिस्टम पे. In for example, अगर if India is exporting country, in this example मैं इंडिया को एक्सपोर्टिंग कंट्री ले रही हूँ, इंडिया ने एक्सपोर्ट करना है, मैंगो एक्सपोर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग कंट्री है. अगर इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है, अगर इंडिया की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ द करेंसी, इन कंपैरिजन ऑफ द करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री,
तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिव। वहां पर एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुश्किल? क्योंकि अगर इंडिया की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर अगर हम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में जो अगर इंडिया ने कोई सामान एक्सपोर्ट करा और इंडिया जब वहां से करेंसी लेगा, कहां से, होस्ट नेशन से, जब बाद में वो अमाउंट कलेक्ट करेगा, तो उस केस के अंदर जो उसे अमाउंट मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि $1 US इज इक्वल टू 60 रुपीज, राइट, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। जब इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो गया, ठीक है, 70 रुपीज हो गया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा और जो इंडियन करेंसी है, सॉरी बेटा, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, राइट। जब एप्रिसिएशन होगा तो $1 विल बिकम 55 और 58 रुपीज। तो इन दैट केस जब हम कन्वर्ट करेंगे आफ्टर रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर एक्सपोर्ट्स इनटू द इंडियन करेंसी, तो हमें उस टाइम कम पैसे मिलेंगे, इसलिए एक्सपोर्टर के जो एक्सपोर्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक, 5 एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। फर्स्ट, storage, warehousing and material. Yes, these are the part of logistics system. Next, it also includes packaging and utilization. Next, inventory. Obviously जब हम raw material की बात कर रहे हैं, from the point of production की बात कर रहे हैं, तो inventory is also a part of logistic. Obviously और finished goods के लिए भी हम inventory maintain करते हैं, तो it is also a part of logistic. Now the next is transport. Yes, transport is also a part of logistic. Now the last, information and control. There is a role of information control technology in the logistic system. Thank you students. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. Prepare this topic. This topic is very important.